My dear students of BTech second year, I am Dr. Rohin Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department. I at Chamil Devi Group of Institution Indore. I wish to teach you through lecture 2 numerical integration. So as we have discussed in the lecture 1 of this unit, numerical differentiation. So it is the inverse process of differentiation which we called as numerical integration, and this is to be started by especially by trapezoidal Simpsons and the 1/3 as well as the 3/8 rules with examples. So see, first of all, what do you mean by numerical integrations? So the process of computing the value of a definite integral a to b f of x dx from a set of numerical values of the integrand is called numerical integration. When applied to the integration of a function of one variable, the process is known as quadrature. So what will be the method of general quadrature here? A general quadrature formula for equidistant ordinates is just prepare as follows. We shall now establish a general formula for numerical integration from which the other special formulas will be deduced by the two famous scientists. One of them is trapezoidal and second one is Simpsons. So for this we assume that the values of x are at equal intervals, say a equal to low limit of the integral, suppose as x0, then the next interval, next point is, next value is x1 equal to x0 plus h, x2 as x0 plus 2h, and the last limit as upper limit is always equal to this value is xn, let me suppose is x0 plus nh. Then from the given integral we are having the value of integral as fx. So from this fx which is known as y, we can find by using the Newton-Gagry forward interpolation formula. So this is the Newton-Gagry forward interpolation formula which I have been again revised to you through lecture 1 of this unit here. I once again utilize this y equal to fx equal to y0 plus u of delta y0, u into minus 1 upon factorial 2 delta 2 of y0 and u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 delta cube of y0 plus dot where u is equal to new independent variable is x minus x0 upon h. Multiply by this you can obtain x equal to x0 plus h. So now our objective is to integrate this equation 1 on the both sides with respect to x over the limit a to b as x0 to xn. So we get here a to b fx dx equal to x0 to x0 plus nh of f of x, but we know that x equal to x0 plus h. So just differentiating both the side here. So this gives to you dx equal to h du, where x equal to x0. Then when accordingly you find the change in the limit of integration here, when you substitute here x equal to x0 you get u equal to 0. When you are putting x equal to x0 plus nh you will get a equal to n. Therefore on putting this value in the above equation it will transform to this way. Now then you can integrate term by terms here. The first term integration in n of v0 plus n square upon 2 delta of y0 1 upon factorial 2 as it is, and cube upon 3 minus n square upon 2 the integration of that previous equation delta 2 of y0, and so on up to this, call it by equation number 2 where h equal to b minus a upon n. So this formula is known as the general quadrature formula, या जिसको आप लोग बोल सकते हैं ये एक जनरल मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी एक डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब हमारे पास दो स्पेशल फेमस साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको स्पेसिफाई किया है. उसमें सबसे पहला फेमस साइंटिस्ट हुआ ट्रेपेजॉइडल, जिसने रूल दिया, इसका नाम हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल. इस क्या करता है, इसमें n की वैल्यू 1 लेता है. इन इक्वेशन नंबर 2 में जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास ऑर्डिनेट्स कितने होंगे. हमारे पास ऑर्डिनेट मतलब y की जो वैल्यू है 2 होगी, एक होगी y0 और y1.
एंड ओनली वन फाइनाइट डिफरेंस इज एग्जिस्ट। जब आप इसका फाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे y1 माइनस y0 करेंगे तो केवल एक ही एग्जिस्ट करेगा और बाकी सब डिफरेंस 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, आपकी x0 से x1 हो जाएगी fx dx इक्वल टू h आप y0 प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा y0। डेल्टा y0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख देंगे और उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा h/2 ऑफ y0 प्लस y1। और इसको इस बात को हम लोग ज्योमेट्रिकली हम समझा सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ दिस रिजल्ट इज दैट द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x, the x-axis and the ordinates y0 y1 is approximated by the area of the trapezium whose parallel sides are y0 and y1 and whose breadth is h equal to xn minus x0। and now similarly, because this job is not complete here because our objective is to find up to answer xn, so हमें नेक्स्ट सब इंटरवल की बात करना होगी। सिमिलरली इसको रिपीट करना होगा। तो जब आपके पास नेक्स्ट सब इंटरवल होगा x1 से x2 f ऑफ x होगा h/2 होगा, तो यहाँ पर सफिक्स में आपका सब्सिक्ट आएगा y1 फॉर x1 एंड y2 आएगा x2 के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर आप लोग इसमें इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, x2 से x3 में करेंगे तो यहाँ पर आपका y2 प्लस y3 आएगा। ऐसा करते करते हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, xn माइनस 1 से xn तक जाएंगे तो yn माइनस 1 प्लस yn हो जाएगा। और फिर जब आप ये सारे रिजल्ट को जोड़ेंगे तो आपको फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का मिल जाएगा, तो जिसमें लाइक टर्म्स आपकी कुछ होंगी जिनमें 2 कॉमन होगा, उनको आप कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बेसिक फार्मूला बन जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल h/2 y0 y1 नॉन रिपीटेड है, इनको एक साथ ब्रैकेट में पहले लिख दिया अपन ने और जिनमें रिपीटेशन हो रहा था उनमें से 2 कॉमन ले लिया, y प्लस y2 प्लस y3 से लेके yn माइनस 1 वेयर h इक्वल टू b माइनस a/n। इसको ट्रेपेजॉइडल ने इस्टेब्लिश किया है, इसलिए इसको ट्रेपेजॉइडल रूल के नाम से जाना जाता है। अब हम आ रहे हैं n बराबर 2 का केस, जिसको कि सिम्पसन ने एनालाइज किया था, जहाँ पर हमने n बराबर 1 के लिए डिस्कशन किया है। अब हमारे पास n इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हमारा जंप जो है x0 से लेके x2 तक है, x0 है, x1 है, x2 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू ऑर्डिनेट होता है वो हो जाएगी y0 y1 y2 हो जाएगी। अब आप जब इसका डिफरेंस टेबल बनाने जाएंगे तो आपके पास y1 माइनस y0 होगा, y2 माइनस y1 होगा, मतलब आपका फर्स्ट डिफरेंस होगा और फिर इसके बाद एक और डिफरेंस होगा, मतलब डेल्टा y0 होगा, डेल्टा 2 y0 होगा, एग्जिस्ट करेंगे और बाकी सब 0 होते जाएंगे। इस तरह से हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका पहला सब इंटरवल में इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी x0 से x2 में f(x) इक्वल टू h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। इसी तरह से इस बात का हम पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लें, फिर इसको रिपीट करेंगे हम लोग। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये बताता है कि जो आपका कर्व है, फंक्शन है y इक्वल टू f(x) बिटवीन द लाइंस x0 से लेके x2 के बीच में अप्रोक्सीमेट हुआ है बाय द एरिया ऑफ द पैराबोला हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 अपॉन h डेल्टा ऑफ y0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर डेल्टा 2 ऑफ y0 एंड विच passes through the points x0 x1 y1 y1 x2 y2। very interesting geometrical interpretation here। अब हम इसी बात को दूसरे सब इंटरवल के लिए आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहला था x0 से x2, अब अगला आएगा x2 से x4 तरफ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पर सफिक्स में y0 है और फिर सफिक्स में एक जुड़ता जाता है और बीच में 4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका y2 प्लस 4 y3 प्लस y4। एंड सिमिलरली यू कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट स्टेप एज x4 ऑफ x6 एंड सॉन्ग xn माइनस 2 ऑफ xn। इसके लिए आपको एनालॉगसली वैल्यू मिल जाएगी yn माइनस 2 प्लस
4 ऑफ y n माइनस 1 प्लस y ऑफ n। इस तरह से ये जितनी वैल्यू आई है इनको आप सबको जोड़ देंगे तो आपके पास एक कॉमन फार्मूला बन जाएगा। h/3 सभी में कॉमन है, y0 yn कॉमन नहीं है, इसको एक साथ ले लिया। अब इनमें कुछ टर्म्स जो मिडिल टर्म्स थी उनमें 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिया, और बाकी टर्म्स रिपीट हो रही है तो इसलिए उसमें से 2 कॉमन ले लिया। तो इस तरह से आपका ये जो फार्मूला क्योंकि सिम्पसन ने डिज़ाइन किया है n बराबर 2 के लिए, इसलिए इसको 1/3 रूल कहा जाता है, वेयर h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। इसी साइंटिस्ट ने एक और करेक्शन किया है, एक और वेरिएशन किया है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में। जब n बराबर 3 रखते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए इस फार्मूले को हम सिम्पसन का 3/8 रूल बोला जाता है। देन देयर आर ओनली 4 ऑर्डिनेट्स आपके सामने पिक्चर में रहेंगे, क्योंकि आपको x3 तक जाना है, मतलब y3 तक जाना पड़ेगा, तो y0 y1 y2 y3 होगा। तो यहाँ पर आपके पास केवल 3 फाइनल डिफरेंस एग्जिस्ट करेंगे, बाकी इसके बाद के सब 0 हो जाएंगे। और फिर आप लोग यहाँ से वो वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे x0 से x3 f ऑफ x ऑफ dx इक्वल टू वो वैल्यू आएगी 3h अपॉन 8, ब्रैकेट के अंदर आएगा y0 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3। फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे हम लोग। So the geometrical meaning of this result is that the curve y to x between the line x equal to x0 से x equal to x3 is approximated by the area of the cubical parabola whose equations to be obtained here in an analogous manner। इसमें एक टर्म और आपकी पहले जैसी जुड़ जाएगी, जो पैराबोला था अब वो क्यूबिकल पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 3 हो जाएगी आपकी, विच पासेस थ्रू दी 4 पॉइंट से पास होके जाएगा। x0 x y0 होगा x1, y1 होगा x2, y2 होगा x3, y3 होगा, एंड प्रोसीड सिमिलर मैनर्स। फिर आपका डिफरेंस x3 से x में 6 में जंप हो जाएगा, जिसमें वेरिएशन आएगा आपका y3 इसके सफिक्स में प्लस 3 इंटू इसके सफिक्स में एक जोड़िए y4, फिर सफिक्स में जोड़िए y5, फिर इसके सफिक्स में जोड़िए y6, तो आपको अपर ऑर्डिनेट्स के लिए मिल जाएगा। एंड सॉन्ग यू कैन कंटिन्यू फॉर xn माइनस 3 से xn तक हम लोग इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे। y अप n माइनस 3 इंटू y n माइनस 2, इसके सफिक्स में एक जोड़ते जाइए y n माइनस 1 प्लस y n। देयरफॉर सारे रिजल्ट्स को आप लोग जोड़ देंगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें 3h अपॉन 8 कॉमन होगा, और जो नॉन रिपीटेड होंगे वो y0 yn होंगे। कुछ टर्म्स में से आपके 2 कॉमन होंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को बोला जाता है 2 टाइम्स ऑफ ऑल दोज ऑर्डिनेट मल्टीप्लस ऑफ 3। इसके अलावा जितने रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स हैं वो आपके यहाँ पर ब्रैकेट में जाएंगे 3 टाइम्स के साथ में y1 प्लस y2 प्लस y4 अप टू yn माइनस 1। इस फॉर्मूले को सिम्पसन ने फिर से रिवाइज किया था, इसलिए इसको 3 के लिए किया था, इसलिए 3/8 रूल हो गया है आपका। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेके द अबव मेथड इज वेल अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सपोज ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमें बाय टेकिंग नंबर ऑफ सब इंटरवल 4 थ्रू द ट्रापेजॉइडल रूल करना है, सेपरेशन 1/3 रूल को भी यूज़ करना है, सिम्पसन 3/8 रूल को भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है। हम देखेंगे किस तरह से आंसर में वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले हम इंटरवल डिसाइड करेंगे, h की वैल्यू b माइनस a अपॉन n ओवरऑल फार्मूला होता है। इसमें आप लोगों के पास अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, n की वैल्यू है 4, सब इंटरवल है, इसलिए आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 1/4। आपका पहला कॉलम बनेगा x का, दूसरा कॉलम y का बनेगा। y का मतलब आपके पास जो इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया होगा उसको आप लोग यहाँ पर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर सबसे पहले लो लिमिट से स्टार्ट करेंगे। लो लिमिट है x0 यहाँ पर रखेंगे, तो आपके पास 1/1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा y0। फिर इसमें h जोड़ेंगे तो 1/4। यहाँ पर आप x की जगह x1 रखेंगे तो आपके सामने एलसीएम लेने के बाद 16/17 आएगा। इसी तरह से x2 के लिए, x3 के लिए एक्सपोर करते जाएंगे। ऐसा हम लोग कॉमन डिफरेंस कब तक जोड़ते जाएंगे, जब तक हमारे को अपर लिमिट इंटीग्रेशन नहीं मिल जाती, तब तक हम इस टेबल को कंप्लीट या एंड नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पास जो भी रूल क्या फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे टेबल में वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम इस फार्मूले को उसमें कन्वर्ट कर देंगे।
एन ऑर्डिनेट y0 y4 है, इसके बीच के जो ऑर्डिनेट बच गए हैं वो y1 y2 y3 हैं। अब रख दीजिए जो आपने अभी टेबल में वैल्यू निकाली है वो सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए, h की वैल्यू रख दीजिए, उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.78275 होगा है। अब इसी तरह से सिम्पसन का 1/3 रूल लगाएंगे तो इसमें फॉर्मूला आएगा h/3 y0 प्लस yn 4 टाइम्स y1 प्लस y3 और yn माइनस 1। ये आपके सामने जनरल फॉर्मूला लिखा जाएगा और इस मामले को अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। y0 y4 आपका लास्ट में 4 टाइम्स ऑड मल्टीपल से करना है और इवन मल्टीपल को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर टेबल से ये सारी वैल्यू रख देना है और इसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.7854। फिर इसके बाद आपके पास आपको एक और मेथड अप्लाई करना है 3/8 की, तो पहले वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसमें ये अपडेशन करेंगे। 3/8 हो जाएगा, सम ऑफ एन ऑर्डिनेट, फिर 2 टाइम्स ऑफ ऑल दोज ऑर्डिनेट, मल्टीपल ऑफ 3 का एक ही ऑर्डिनेट है और फिर इसमें 3 टाइम्स हम सम करेंगे उन ऑर्डिनेट्स का जिसमें आपके पास पहला और बीच का जो बचा हुआ है y1 और y2 जो आपका बचा है, फिर टेबल से वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी 0.7503। इस तरह से आप लोग आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।